Hi, good afternoon, everyone. My name is Priya Meena. I have secured AIR 833 this year in UPSC CSE examination. And first of all, I would like to thank UPSC Time for giving me this opportunity and this platform to share my strategy and my journey. So I'll start with the session right now. So, firstly, a brief introduction about myself. As I mentioned, my name is Priya Meena, and this was my sixth attempt at UPSC. I have previously given three interviews in my second, fourth, and this was my sixth attempt. And I could not clear prelims in my first, third, and fifth attempt. So, it has been a long journey of 7 years. And so I would like to focus on prelim strategy, and then I'll tell about what were the learnings when I couldn't clear prelims. Then after that, we'll go on to the sources which I referred for prelims and mains both. And finally, we'll look into the personality test aspects. Further, we'll also look into how we should handle stress and anxiety during this preparation. And in the end, I would also talk about Plan B because I'm already working in RBI as a Grade B manager. So we'll focus on that as well, that why Plan B is important and when should we start preparing for Plan B. Okay. So I am a chemical engineering graduate, dual degree from IIT Delhi. Then post that, I worked for around 1 year in a software developing company as a full stack developer. I took that job because I wanted to fund my own education. I wanted to fund my UPSC preparation on my own. So that was my aim while doing that job. Further, from 2019, I started giving my UPSC attempt. And in my first attempt, I could not clear prelims. I missed the prelims by 2 marks. But the learning which I took from that attempt was that my basic sources were not very well covered in that attempt. I had mostly focused on the current affairs parts. Secondly, my mains preparation was also not very great at that time, and that I got to know in my 2020 attempt when I could clear prelims, but was short of a lot many marks in my mains, GS and sociology. Then in 2020, that was my second attempt. Usme I could clear the prelims and I reached till the interview stage. However, I missed the final list by 11 marks. The learnings which I got from my second attempt, reaching interview my second attempt was a great thing, but the learning which I got was that I could not finish my papers. My GS papers were not finished. I literally left many pages in my GS answers. So 100 marks ka GS I couldn't attempt. And sociology also, I had done just the surface level ka preparation. So that was a learning that my preparation was not very great. Okay, I'll speak in Hindi. Then, but at that time, उस समय मुझे इंटरव्यू में काफी अच्छा स्कोर मिला था 180 एंड इस वजह से जो मेरा फाइनल मिस हुआ था वो 10 मार्क्स का ही था. तो मुझे लगा था नेक्स्ट अटेम्प्ट दैट विल बी माय 2021 अटेम्प्ट, उसमें मैं बहुत अच्छा परफॉर्म कर पाऊंगी. तो मैंने फिर से प्रीलिम्स दिया. बट इस बार जो था प्रीलिम्स वो 2020 के रिजल्ट के जस्ट 15 दिन बाद ही था प्रीलिम्स. और उस टाइम मैं इतने लो फेज में थी, माय मेंटल हेल्थ वाज नॉट ग्रेट, आई कुडंट स्टडी वेल एंड ड्यूरिंग एग्जामिनेशन हॉल मैं बहुत कॉन्फिडेंट नहीं थी अपने आप को लेके. सो आई कुडंट क्लियर प्रीलिम्स एट दैट टाइम. माय मीडियम वाज इंग्लिश थ्रू आउट द प्रिपरेशन. So 2021 attempt में I could not clear prelims, but at that time I had decided कि since I've already given 3 attempts, 3 attempt में दे चुकी हूँ और UPSC का as you know कोई भरोसा नहीं है, मेंस में लिख चुकी हूँ. तो मैंने उस टाइम सोचा कि अपने कॉन्फिडेंस को बूस्ट करने के लिए मुझे प्लान बी पे फोकस करना चाहिए. प्लान बी से मेरा मतलब ये था कि मैं बहुत अंडर कॉन्फिडेंट फील करने लग गई थी 2021 के बाद. आईआईटी से ग्रेजुएट थी, जॉब खुद छोड़ी थी, इंटरव्यू में फेल कर गई थी, तो बहुत ज्यादा लो फेज था 2021 में मेरा. सो मुझे लगा कि इस टाइम मुझे प्लान बी पे फोकस करना चाहिए एंड दैट आई डिड. उस समय मैंने IB-ACIO का एग्जाम लिखा था, फिर मैंने SBI PO का और IBPS PO, ये तीनों एग्जाम्स मैंने क्लियर किए थे 2021 में. फिर मैंने तीनों एग्जाम से एक्सटेंशन ले ली थी 2022 के अटेम्प्ट के लिए. देन 2022 का अटेम्प्ट आया, दैट वाज माय फोर्थ अटेम्प्ट एंड इसमें अगेन आई कुड क्लियर प्रीलिम्स विद गुड मार्क्स. CSAT कभी कोई इशू रहा नहीं अभी तक. और उसके बाद 2022 में अगेन प्रीलिम्स क्लियर हुआ, मेंस क्लियर हुआ एंड मैं इंटरव्यू स्टेज तक पहुंची. अब यहाँ पे ये ट्विस्ट आया कि इस बार इंटरव्यू में मुझे
पिछले साल से इस साल 20 नंबर कम मिले हैं। 160 मेरा स्कोर था इंटरव्यू का एंड मैंने फाइनल लिस्ट मिस कर दी 5 नंबर से। सो बहुत अगेन इट वाज अ डिसहार्टनिंग फेज कि सेकंड टाइम इंटरव्यू दे रही हूँ एंड मार्क्स अच्छे नहीं आए हैं। बट फिर मैंने एनालाइज किया अगेन अब मैं हमेशा मेरी यही स्ट्रैटेजी रही है कि अगर मैं किसी स्टेज पे फेल कर रही हूँ तो मैं देखती हूँ कि मैंने क्या सीखा है वहां से या और क्या मैं बेटर कर सकती हूँ। तो उस स्टेज पे मैंने ये सीखा कि अगेन मेरे सोशियोलॉजी स्कोर्स अच्छे नहीं थे, इंटरव्यू में मैंने गंदा परफॉर्म किया था एंड तो यहाँ मुझे इंप्रूव करने की जरूरत थी दोनों स्टेजेस पे, ताकि नेक्स्ट अटेम्प्ट में ये ना हो। सोशियोलॉजी में मेरा स्कोर दोनों बार अभी तक 224 223 रहा था, तो ऑप्शनल वाज अ बिग हर्डल फॉर मी अपने शुरू के अटेम्प्ट्स में। देन उसके बाद इस साल मैंने जो मिस की लिस्ट वो 5 नंबर से थी, फिर मैं लिस्ट पे नाम नहीं आ पाया। मुझे लगा कोई बात नहीं, 2023 का अटेम्प्ट अच्छे से देंगे, बट शायद भगवान को नहीं चाहिए था कि 2023 में मैं एग्जाम लिखूं, तो 2023 में मैंने CSAT में फेल किया and that came as a shock for me because isse pehle CSAT was never an issue for me. I had always been a great student in maths. I am good with comprehension as well, but I don't know what happened during the CSAT session. I could not solve many questions 2023 mein because my comfort areas were not PNC and number system. एंड इससे पहले मैं हमेशा बाकी क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर लेती थी, रीजनिंग के कर लिए या सिलॉजिज्म कर लिया, प्रॉफिट एंड लॉस कर लिया। बट इस साल आपको पता है 2023 का CSAT कैसा आया था एंड मुझे उस साल 65 मार्क्स मिले थे CSAT में, सो आई कुडंट क्लियर CSAT. Again, a very low phase came into my life and I was like, this 5 attempts I've given, no job, nothing. So at that time I started preparing for RBI. RBI में मैं अभी एज अ ग्रेड बी मैनेजर जॉब कर रही हूँ। तो मेरी एक फ्रेंड थी, उनसे मैंने इंस्पिरेशन ली कि हाँ मुझे भी RBI का एग्जाम दे देना चाहिए। मैंने डेडिकेटेडली RBI के लिए प्रिपेयर किया 2023 में एंड लकीली मैं RBI में मेरा एग्जामिनेशन सेलेक्ट हो भी गया। एंड 2023 में एक और अच्छी चीज हुई कि 2022 के मार्क्स के हिसाब से स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया में मुझे एज एन असिस्टेंट डायरेक्टर के लिए चुना गया। तो वहां पे मैंने इंटरव्यू दिया था एंड मुझे वहां पे भी जॉब मिल गई थी। तो 6 महीना मैंने स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया में जॉब किया एंड उसके बाद क्योंकि मैं RBI में सेलेक्ट हो गई थी तो मैंने RBI में अपना जॉब कंटिन्यू किया फ्रॉम अप्रैल 2024 एंड आई एम स्टिल वर्किंग इन RBI. सो जो मेरा ये लास्ट अटेम्प्ट था, जो मेरा लेटेस्ट अटेम्प्ट था 2024 वाला जिसमें मैंने रैंक प्राप्त की है 833, ये मैंने फुल टाइम किया था विद माय जॉब. सो अब मैं आप लोगों से अपने सोर्सेज एंड स्ट्रैटेजी शेयर कर लेती हूँ कि क्या मैंने किया था. सो लर्निंग जैसे मैंने आपको बता दी कि आपको बेसिक पे बहुत ज्यादा फोकस करना है. आप करंट अफेयर्स ओरिएंटेड पढ़ाई नहीं कर सकते हैं. मेरे को फर्स्ट अटेम्प्ट में लगा था कि करंट अफेयर्स ओरिएंटेड मैं अपना करंट अफेयर स्ट्रॉन्ग रखूंगी और एग्जाम हो जाएगा, बट ऐसा नहीं होता है. आपको अपनी बेसिक बुक्स, बेसिक नॉलेज आपकी बहुत अच्छे से होनी चाहिए. सेकेंडली, काम माइंड बहुत जरूरी है. प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में आपके सामने आंसर होता है, बट अगर आप हड़बड़ा रहे हैं या आपको खुद पे कॉन्फिडेंस नहीं है या आपको लग रहा है मैंने तो अच्छे से प्रिपरेशन नहीं की या मैंने एक्स अमाउंट ऑफ मार्क्स नहीं दिए हैं या PYQs अच्छे से नहीं किए हैं, तो ट्रस्ट मी आप एग्जाम में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएंगे. तो आप मेहनत कीजिए एग्जाम वाले दिन तक एंड भरोसा रखिए उस मेहनत पर कि करेंगे आप अच्छा. नेक्स्ट, एवरी अटेम्प्ट को हमें फर्स्ट और फ्रेश अटेम्प्ट की तरह लेना चाहिए. ये गलती मैंने अपने चौथे अटेम्प्ट में की थी 2022 में, जब मुझे लगता था कि मैं 4 अटेम्प्ट दे चुकी हूँ और बहुत बैगेज मैंने खुद के दिमाग में ले लिया था. तो वो हमें नहीं करना है. फ्रेश अटेम्प्ट की तरह इसलिए भी देखना है, जैसे CSAT था, मैं हमेशा कभी CSAT प्रिपेयर नहीं करती थी क्योंकि मुझे लगता था CSAT इज अ वेरी कंफर्टेबल स्पेस फॉर मी. बट पैटर्न चेंज हो रहा था. 2022 में भी CSAT मुश्किल आया था, तो मुझे उस टाइम पे ये लर्निंग मिली कि CSAT को मैं लाइटली नहीं ले सकती, मुझे CSAT भी करना पड़ेगा. देन प्रीलिम्स के 1-1.5 महीना पहले आप लोगों को फुल लेंथ प्रैक्टिस कर लेनी स्टार्ट कर देनी चाहिए. आप किसी भी एक कोचिंग का सेक्शनल कर लीजिए. मैं वो ज्यादातर विजन IAS का किया करती थी. एंड अगेन नेक्स्ट आपको करना है अलग अलग कोचिंग से आप फुल लेंथ करें, क्योंकि अगर आप एक ही कोचिंग का फुल लेंथ करने लगेंगे ना, तो उससे ये होगा कि आपका माइंडसेट उसी हिसाब से काम करने लगेगा. और हमें वहां पे कोचिंग का आंसर सॉल्व नहीं करना है, हमें UPSC का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना है. तो मेरा ये अटेम्प्ट रहता था कि मैं ज्यादा से ज्यादा डिफरेंट कोचिंग के पेपर कर सकूं. उससे क्या होता था कि आपके एरियाज भी अलग अलग कवर हो जाते थे, डिफिकल्टी लेवल भी अलग अलग आपको पता चलता था. एंड अगर आप ऑल इंडिया मॉक्स देंगे फ्री वाले अवेलेबल, तो उससे आपको भी पता चल जाता है आप कहाँ स्टैंड कर रहे हैं. तो वो चीजें जरूरी हैं. CSAT का जैसे मैंने आपको बताया, आप फ्री सोर्सेज से CSAT कर सकते हैं प्रिपेयर. देन सेकेंड, सो ये है हमारा कि अप्रोच क्या रहनी चाहिए प्रीलिम्स के लिए हमारी. अब हम सोर्सेज पे आते हैं. पहला वुड बी न्यूज़पेपर. न्यूज़पेपर आपको बहुत डिलीजेंटली पढ़ाई करनी है न्यूज़पेपर से.
इसलिए जरूरी है क्योंकि न्यूज़पेपर आपको एक तो अवेयर सिटीजन बनाता है, बहुत जरूरी है, क्योंकि आप जब इंटरव्यू देंगे, जब आप मेंस का आंसर लिखेंगे, तो आपको पता होना चाहिए कि मल्टी डायमेंशन जो हम बात करते हैं वो कहाँ से अंडरस्टैंडिंग आएगी, वो आपकी न्यूज़पेपर से ही आएगी। सेकेंडली प्रीलिम्स में वो इसलिए हेल्प करता है क्योंकि बहुत टॉपिक्स हैं जो बार बार रिपीट होंगे।